Hello everyone. Again welcome to our classes. Now today we will discuss types of set. Firstly we define set. As we studied in our previous class, a set, it is a well defined collection of distinct objects. We have to discuss types of set. Number first is empty set. Number second, singleton set. Number third is finite set. Number fourth, non-finite set. Number 5, equal set. Number 6, equivalent set. And number 7 is universal set. Now we have 7 types of set: empty set, singleton set, finite, non-finite, equal set, equivalent set and universal set. First is empty set. A set which contain no element called empty set. It is denoted by curly bracket or phi. It is pronounced phi. Mathematically, empty pronounced phi. Suppose you have a set X such that X is an even number where X is greater than 3 but less than 4. Where X is greater than 3 but less than 4. So हमें यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो that means it is a phi. It is denoted by phi or curly bracket. It is also written as this type, this and this one also. Clear है? Now, singleton set. A set which contain only one element are called singleton set. एक ऐसा set, a set which contain only one element. एक ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता है कॉल्ड सिंगलटन सेट. That means, for example, X such that X is an even prime number. X such that X is an even prime number. That means 2. 2 is an even prime number. It contain only one element. So this is an example of singleton set. तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लाई करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट. नाउ हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की. अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट. अब इस फाइनाइट सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1000 जितने भी आप काउंट कर सकते हैं. तो सब किस में आएंगे? फाइनाइट सेट में आएंगे. जैसे x such that x is a natural number where x is less than 10 but greater than 1.
दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are element of finite set. Similarly, non-finite set, a set which contain non-finite number of element, which contain non-finite number of element called non-finite set. Set of whole numbers, set of natural numbers, set of integer, all are non-finite set. इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं अप टू फाइनाइट तक, तो उसे हम बोलेंगे नॉन-फाइनाइट सेट. अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की. इक्वल सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और साथ ही एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो. सपोज यू हैव टू सेट, A is A, B, C, D and B is also A, B, C, D. That means A equals to B. There is a number of elements are also equal and elements are exactly same to each other. It is called equal set. In the case of equivalent set, suppose you have two sets A, B, C, D and B is 1, 2, 3, 4. Here the number of element in set A is 4 and number of element in set B is also 4. तो यहाँ पर set A में भी 4 elements है and set B में भी 4 elements है. तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट. यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हो ये आपस में सेम हो, बट इन द केस ऑफ इक्वल सेट एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, दैट मीन्स इक्वल. तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सेट और ये आपका हो गया इक्वल सेट. ये क्लियर है? देन हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट विच आर अंडर डिस्कशन. दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट आपका एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे सेट कंटेन हो जिनकी हम किसी भी प्रॉब्लम में बात करते हैं. सपोज यू हैव 3 सेट ABC 1 to 3 ABC and XY Z. तो यूनिवर्सल सेट आर सेट विच कंटेन all the elements of set which under discussion. 1, 2, 3 A, B, C, X, Y, Z. तो ये जो आपका होगा यूनिवर्सल सेट होगा. यूनिवर्सल सेट में आप किसी भी प्रॉब्लम में जितने भी सेट्स की बात करते हैं उन सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे. तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट. तो एक वन बाय वन एक रिकैप दे देते हैं. एमटीपी सेट which have no element, it is denoted by 5. Singleton set which have only one element. Finite set which are finite number of elements. Non-finite set which are non-finite number of elements. Equal set which are finite number of elements. If two set having the same element and same number of element, that is called equal set. In the case of equivalent set, there are two set having the same number of element, but it is not compulsory the elements are also same. In the universal set, a set which contain all the elements of set which are under discussion. Is clear? अब हम आगे बढ़ते हैं. Suppose singleton set and empty set. Please note that point. The 5 is counted as a singleton set also. हम 5 को सिंगलटन सेट भी बोलेंगे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं. तो यहाँ पर एक एलिमेंट 5 कंटेन कर रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं. बट 2 को हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते. अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर कोई भी अल्फाबेट पुट कर रहे हैं तो हम इसे सिंगलटन सेट बोलेंगे. बट 5 के केस में हम 5 को सिंगलटन सेट बोल सकते हैं. एंड देन अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट. Now 8 proper set and then हम बात करेंगे improper set. इसके बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं सबसेट के लिए. सबसेट देखो सब से ही मीनिंग निकल के आ रहा है कि सेट का छोटा फॉर्म दैट इज कॉल्ड सबसेट. जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर.
तो इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4, इस एलिमेंट से अगर मैं एक न्यू सेट जनरेट करती हूँ B लाइक दिस 1 and 2, तो आप देख रहे हैं जो B के एलिमेंट है वो एक में बिलोंग कर रहे हैं. 1 is belongs to A and 2 is also belongs to A. That means all the elements of B belongs to A. That means B is a subset of A. B is a subset of A. इसका मतलब ये हो गया जो B है वो A का सबसेट होगा. अब B is a subset of A. सबसेट, ये आपका जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है. क्लियर है? सबसेट का सिंबल आपका ऐसा भी हो सकता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सबसेट एंड इक्वल. इक्वल रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी, जैसे सेट सबसेट बी है तो इसके सारे एलिमेंट ए पे लाए कर रहे हैं, तो ये भी आपका सिंबल होता है. तो बोथ आर सेम. ये और ये आपका दोनों क्या है? सेम है. अब अगर बात करें प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट की, तो वो क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास एक सेट है ए, अगेन हम 1 2 3 4 कंसीडर कर लेते हैं. अब इससे आप कितने सेट बना सकते हैं? पहले तो अगर मैं इससे सेट बनाऊंगी तो 1, पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे, देन हम पेयरिंग में सेट बना सकते हैं. 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर. रिपीटेशन नहीं करना है. अगर आपने 1,3 बना लिया है तो आप 3,1 नहीं बनाएंगे. नाउ 3 3 पेयर ले लेते हैं, 1 2 3. इसी तरीके से 1 3 4, इसी तरीके से 2 3 4, और ऐसे ही एक बार आप पूरा ले सकते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे आप सबसेट्स बना सकते हैं. तो ये जो होते हैं आपके सबसेट होते हैं. सबसेट निकालने का सबसे इजी तरीका ये होता है 2 to the power n. इससे आपके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट हो सकते हैं. एक आपके पास ए है 1 2 3, और सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट से कितने बनेंगे ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम जनरली करेंगे 2 to the power n. इट मीन्स हम इसमें सबसेट बना सकते हैं 1 2 3, 1 2 1 3, एंड कुछ रिमेनिंग बचा 2 3, एंड लास्ट वन इज 1 2 3. तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. बट इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, दैट मीन्स 8 सबसेट बनने चाहिए. तो एक लास्ट वन क्या होगा? लास्ट वन इज 5. क्लियर है? तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर एक सेट का सबसेट 5 होगा. हर एक सेट का सबसेट 5 होगा. अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की, तो ये जितने भी आपके 7 सेट होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सेट. इसमें आप इस सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे. जनरली अ सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट. अ सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ दिस सेट. तो एक सेट जो भी होता है वो अपना ही सबसेट होता है. क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बात करी है सिर्फ प्रॉपर सेट की. प्रॉपर सेट में जिस एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स आएंगे जिस सेट में, उस सेट को हम नहीं लेंगे. हम सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स लेंगे. ये आपका प्रॉपर सेट होगा. दैट मीन्स अगर हम लिखे तो दीज आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या? एक जनरली कहने का तरीका हमने चेंज कर लिया है. सपोज अगर मैं कहती हूँ B इज अ सबसेट ऑफ A. सपोज मैंने बोला B इज अ सबसेट ऑफ A, और कोई इसको इसी तरीके से बोलता है A इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. सिर्फ उसको चेंज किया है. जैसे आप बोलते हैं 2 इज लेस देन 8 बोलो, या फिर 8 इज ग्रेटर देन 2 बोलो. अगर आपने बोला है 2 इज लेस देन 8, दैट मीन छोटे को डिफाइन किया है, तो ये आपका हो जाता है प्रॉपर सबसेट. एंड अगर आप बड़े को डिफाइन करते हुए बोल रहे हो 8 इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका हो जाता है इम्प्रॉपर सबसेट. तो इसी को हम प्रॉपर सेट एंड प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट भी यूज करते हैं. सबसेट की जगह पर आप सेट भी यूज करेंगे. अगर आप प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं तो वो सेंस भी क्या निकलता है? इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर
सबसेट का इंडिविजुअल फॉर्म निकलता है। तो जैसे मैं बोल सकती हूँ 5 इज अ प्रॉपर सेट। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर सेट बोलती हूँ तो ये जनरल अंडरस्टूड है कि ये सबसेट भी होगा। ये कंपलसरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बोलूँ 5 इज द इम्प्रॉपर सबसेट। हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं 5 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। सिमिलरली 1 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ये। इनके हम कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। अगर कोई आपसे बोलता है कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रॉपर सेट तो आप बोलेंगे 2 to the power n-1 दैट मीन्स 7। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे प्रॉपर सेट, और ये सिंगल आपका जो बचेगा ये होगा आपका इम्प्रॉपर सेट। बट अगर मैं बात करती हूँ ऑल सबसेट की तो इसमें कितने सबसेट होंगे? ऑल 8 आर सबसेट ऑफ ए। तो खुद वो सेट भी अपना सबसेट में काउंट होता है। अब ऐसा होता क्यों है, चलो इसे आगे डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है A, B, C, ठीक है। अब अगर हम पहले एलिमेंट को बोलते हैं कि क्या ये सबसेट बनाने के लिए एग्री है, तो इट हैज 2 चॉइसेस। ये बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, दैट मीन्स 2 चॉइसेस। इसको हम प्रोबेबिलिटी के केस में समझ रहे हैं। सिमिलरली B हैव 2 चॉइसेस एंड C हैव 2 चॉइसेस, दैट मीन्स 8 2 to the power n equals to 8। तो यहां से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। किसी भी सेट के हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस होती है कि वो सबसेट बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो हमें नंबर ऑफ सबसेट अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम 2 to the power n करके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक सेट देती हूँ A equals to A, B, C, T, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सबसेट बनेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दे आर 2 to the power 4 सबसेट। 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 the 16। दैट मीन्स यहाँ पर कितने सबसेट बनेंगे? 16 सबसेट बनेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर सेट या फिर प्रॉपर सबसेट तो आप कितने बोलेंगे? 16 minus 1 equals to 15। There are 16 proper subset and 1 is improper subset। और 1 क्या हो जाएगा आपका? improper subset। और 5 भी इस प्रॉपर सबसेट का एक पार्ट होगा। 5 भी इस प्रॉपर सबसेट का एक पार्ट होगा। बट अगर हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की तो एम्प्टी सेट के लिए 5 इम्प्रॉपर सबसेट होगा। एम्प्टी सेट के लिए 5 को हम इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। अब किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर सेट, तो अब हम बात कर रहे हैं कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट की। तो कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? सपोज अ सेट ए कंटेन 4 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज रिप्रेजेंट बाय n a इक्वल्स टू 4। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने हम लिख देंगे और यही क्या होता है कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अभी हमने पढ़ा था कि एमटीपी सेट 5 इज ऑल्सो काउंट एज सिंगलटन सेट। बट ये पॉइंट आपको नोट करना, अगर कोई आपसे कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर पूछता है एमटीपी सेट का तो आप बोलेंगे जो एमटीपी सेट होता है उसका ऑर्डर होगा 0। इसे हम उस केस में 1 काउंट नहीं करेंगे। नाउ वी हैव टू टॉक पावर सेट। अब हम बात करेंगे पावर सेट की। सपोज आपके पास एक कोई सेट है x, y, z। अब मुझे इससे क्या बनाने हैं? सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट क्या होंगे? x, y, z। पहले हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं। x, y, x, z, then y, z, और लास्ट वन इज x, y, z एंड 1 इज 5। तो ये क्या हो गए? इसके सबसेट हो गए। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स 2 की पावर 3 8 सबसेट्स आ गया। तो अगर मैं बात करती हूँ पावर सेट की तो कलेक्शन ऑफ
ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट आर कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है उनका जो कलेक्शन अगर हम कर लेते हैं, उसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, सेट है 1 एंड 2, तो इससे जो सबसेट बनेंगे 5 सिंगल 1 2 एंड 1,2, तो ये आपके सबसेट बनेंगे। इन सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा, इज अ पावर सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट इज रिप्रेजेंट बाय पी ए, और इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही क्या होंगे, इसके ऑर्डर ऑफ सेट। अब अगर हम बात करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम की, सपोज आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो हम बोलते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज 3, 4 is a subset of A. Next one 3, 4 is belongs to A, and fourth one is 3, 4, 1 is a subset of A. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर हम बात करते हैं 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ A, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या है, सबसेट की फॉर्म में है। तो अभी मैंने आपको बोला था जितने भी सबसेट है उनका जो कलेक्शन होता है वो पावर सेट होता है। दैट मीन्स इन द केस ऑफ पावर सेट ये सबसेट ही एज अ एलिमेंट काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इस सेट के लिए एक एलिमेंट है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया, बिकॉज इट इज नॉट अ सबसेट। अगर ये सबसेट होता तो इस पे एक और कर्ली ब्रैकेट आता, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट है, तो ये आपके एलिमेंट के लिए काउंट हुआ है, एंड सेकंड वन फॉर सबसेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर ये एज अ एलिमेंट वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3, 4 इज बिलोंग्स टू ए, एंड 3, 4, 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज इसे हम एक सिंगल एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी इसका सबसेट होगा, अदरवाइज इसका सबसेट नहीं होगा। अब आगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।